Hello and welcome to all of you. Today my topic is head injury. This is very interesting topic for examination point of view as well as clinical point of view. In case of head injury, the most important part which are involved in case of head injury start from scalp, skill, brain tissue, blood vessel, and this head injury may be associated with injury of other part as well as spine. As definition is concerned, any head injury that result in trauma to scalp and the tissue of brain, because in case of head injury, as you know, there is the structure which are involved in case of head injury from scalp to brain tissue. Here is the traumatic brain injury that's called TBI, encompasses a broad range of pathological injury to the brain of varying clinical severity that result from head trauma. Means the TBI means traumatic brain injury is created by the trauma on head. The head injury and traumatic brain injury are often used interchangeable. Means the brain injury, or we can say the traumatic brain injury or head injury, traumatic brain injury is caused by the head injury. In case of head injury, as you know, as etiology is concerned, means the etiological factor which are responsible for the head injury, that is first motor vehicle crashes 44%, fall 26%, other and unknown factor 13%, non-firearm assaults 9%, and firearms 8%. Means the motor vehicle crashes or motor vehicle accident is 44%. Means the maximum case of head injury occurring to the accident, or we can say the motor vehicle crashes. As pathological concern or pathophysiology concerned, on the basis of the mechanism of production head injury may be classified as follows. Impacted injury. The impacted injury is result from an object striking on head or head strike on object. मतलब क्या हुआ, यहाँ जो इम्पैक्ट इंजुरी जो प्रोड्यूस हो रही है वो या तो ऑब्जेक्ट का सिर पे टकराने के कारण हो रही है या सिर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, इस वजह से हो रही है. एंड इट्स इंक्लूड स्कैल्प इंजुरी, स्कल फ्रैक्चर, cerebral contusion, laceration, and epidural hematoma. Scalp injury means the injury only limited to scalp. Second, injury created fracture of skull because of grade of injury is so high, and if the grade of injury is so high, maybe create cerebral contusion and cerebral laceration. Means the injury create damage of the brain tissue as well as damage of the meninges, etc., and that create epidural meningeal vessel. They create epidural hematoma, and cerebral contusion and laceration and epidural hemorrhage को अपन आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएशन होता है. There is two type of the injury, either acceleration and deceleration injury. It is essentially a result of differential movement between uh, skull and brain, or we can say the cranial contents. मतलब here is the acceleration and deceleration injury is responsible for the uh, development which occurring inside the skull. It results essential as a result of the differential movement बिटवीन स्कल एंड क्रेनियल कंटेंट. यहाँ पर जो स्कल और क्रेनियल कंटेंट के बीच का जो फिनोमिना है इंजुरी के बाद जो भी क्रिएशन होता है और जो भी डेवलपमेंट आगे होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इंक्लूड डिफ्यूज axonal injuries or subdural hematoma. Means here the involvement of the brain tissue after the injury, the involvement of the brain tissue
or we can say the involvement of the meningeal vessels जो भी इन्वॉल्व होंगी उसकी वजह से either there may be subdural hematoma, and if there is involvement of the brain tissue create a diffused axonal injury. The injury may be cope injuries or counter cope injuries. Cope injury, it occur at the site of impact on head. This is called cope injury. When the injury occur at the site of impact of the head, that produce a compression of the brain due to the inward movement of the bone. When जब कभी भी ट्रॉमा डायरेक्ट मारा जाए, जैसे हथौड़ा मार दिया जाए या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मार दिया जाए या सरिया मार दिया जाए सिर पे, तो वहाँ पर कॉप इंजरी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो इम्पैक्ट साइड है वो हेड पे हुआ है और वहाँ पर चूंकि बोन है वो धस करके अंदर जा करके ब्रेन को कंप्रेस कर सकती है. दैट इज कॉल्ड कॉप इंजरी. एंड सेकेंड वन, द काउंटर कॉप इंजरी, द इंजरी ऑकर डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. जो जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है उसके अपोजिट यदि इंजुरी आ रही है, दैट इज कॉल्ड काउंटर कॉप इंजुरी. आर मोस्ट कॉमन इन फ्रंटल एंड टेम्पोरल, जो कि टेम्पोरल और फ्रंटल बोन में, टेम्पोरल और फ्रंटल साइड पे लोब में कॉमन होती है. प्रोड्यूस्ड बाय हेड इन मोशन इम्पैक्टिंग ऑन दी स्टेशनरी सब्जेक्ट, जो कि हेड के मोशन की वजह से इस तरीके से क्रिएशन होता है. तो यहाँ पर आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो हेड इंजुरी है तो आइदर ड्यू टू द कॉप इंजुरी और काउंटर कॉप की वजह से जो है क्रिएट होती है, जहाँ की इन्वॉल्वमेंट जो है ब्रेन का हो सकता है और मेनिंजीज का हो सकता है. नेक्स्ट, कंसिक्वेंसेज ऑफ द हेड इंजुरी. कंसिक्वेंसेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पहला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज स्कैल्प. सो देयर इज स्कैल्प कंट्यूजन, एब्रेशन और लेसिरेशन. स्कैल्प में कंट्यूजन हो सकता है, छिल जा सकता है, एब्रेशन हो सकता है या लेसिरेशन हो सकता है. आइदर ट्रेमेंडस वेस्कुलरिटी ऑफ स्कैल्प कैन कॉज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग. स्कैल्प में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस वेस्कुलरिटी. स्कैल्प में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ब्लीडिंग जो इंजरी है वो वेस्कुलरिटी की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है. Third one is the osteomyelitis. Either because of injury, there may be inflammation of the bone, that is called osteomyelitis. तो ये consequences हैं कि यदि स्कैल्प में चोट होगी तो वहाँ पर कंट्यूजन, एब्रेशन, लेसिरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है. नेक्स्ट, स्कल फ्रैक्चर हो सकता है. स्कल फ्रैक्चर इज टोटली डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ वायोलेंस, कि किस तरीके का स्कल फ्रैक्चर होगा. और स्कल जो फ्रैक्चर होगा वो सिंपल फ्रैक्चर भी हो सकता है और अंदर आने वाला यदि नेचर ऑफ वायोलेंस ज़्यादा है तो वो जा करके ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है. तो दूसरा जो कंसिक्वेंस है वो है स्कल फ्रैक्चर, कि स्कल फ्रैक्चर होकर के लाइनर फ्रैक्चर हो या कंपाउंड फ्रैक्चर हो. जिस तरीके से यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है, कि ब्लड इंस्ट्रूमेंट से मारा जाएगा. यदि ब्लड इंस्ट्रूमेंट से मारा गया तो हड्डी तोड़ करके अंदर की तरफ धंस जाएगी, तो वो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से बाहर से अंदर की तरफ हड्डी धंस जाएगी और वो प्रेशर में आइदर वो इन्वॉल्व कर लेगा मेनिंजीज को फाड़ सकता है, ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर सकता है, क्रश कर सकता है ब्रेन टिश्यू को. तो इस तरीके से ये डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर भी हो सकता है. एंड समटाइम कंपाउंड फ्रैक्चर की बाहर की तरफ घाव बना हुआ है जिसका टूटी हुई हड्डी से अंदर संबंध है और ब्रेन टिश्यू भी इन्वॉल्व हो सकता है. तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फ्रैक्चर भी हो सकता है, जो कि हेड इंजरी के आने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. तो आइदर देयर में सिंपल फ्रैक्चर, आइदर देयर में भी कंपाउंड फ्रैक्चर, आइदर देयर में भी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. तो स्कल में इस तरीके से तीनों तरीके के फ्रैक्चर हो सकते हैं, सिंपल फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर, जो कि आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एंड समटाइम द बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर. यदि बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो या तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा रैप्चर हुआ है या मिडिल क्रेनियल फोसा रैप्चर हुआ है. तो यदि एंटीरियर क्रेनियल फोसा रैप्चर हुआ है तो ऐसे केसेस में इट मे लीड टू सब कंजक्टाइवल हेमेटोमा एक्सटेंडिंग प्रायर लिमिट टू स्क्लेरा, इपिस्टैक्सिस, नाक से खून आएगा, या CSF राइनोरिया, कान से जो है खून आएगा. तो यदि एंटीरियर क्रेनियल फोसा रैप्चर हुआ है तो या सिर या नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, कभी कभी माउथ से भी खून आ जाता है जो नेजल ब्लीडिंग होती है, एंड समटाइम्स CSF राइनोरिया. और ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है यदि CSF खून में मिला हुआ है, ब्लड में मिला हुआ है. तो वो यदि एंटीरियर कैनेल फोसा रैप्चर हुआ है और CSF ब्लड में मिला है तो
बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस होता है और ब्लड काफ़ी डाइल्यूट होता है। नेक्स्ट, यदि केस ऑफ मिडिल क्रेनियल फ्लक्सर रप्चर हुआ है तो ऐसे केसेस में involving T petrous temporal bone present with CSF otoria, मीन्स देर इज प्रेजेंस ऑफ ओटोरिया। कान से जो है डिस्चार्ज आएगा और उसमें उस कान से जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें CSF भी मिला हुआ है। तो ब्लीडिंग विथ CSF जो है, हीमोटेम्पनी, ऑकुलर डिसरप्शन और इन्वॉल्वमेंट है सेवेंथ और एट्थ नर्व का भी हो सकता है, सेवेंथ और एट्थ क्रेनियल नर्व का। इसके साथ साथ कान मतलब कान में भी डैमेज होगा, साथ में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी डैमेज होगा और साथ में जो ब्रेन टिश्यू के जो खासतौर पर मिडिल क्रेनियल फोसा के रप्चर की वजह से इस कान से खून आएगा वो इस सीसप में मिला होगा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा रप्चर भी हो सकता है, मिडिल क्रेनियल फोसा भी रप्चर हो सकता है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा रप्चर की वजह से आंख में खून आ गया, नाक से खून निकल रहा है, CSF भी नाक से आ रहा है जिसको आप बोलते हैं CSF राइनोरिया। मिडिल क्रेनियल फोसा रप्चर की वजह से कान से जो है खून आ रहा है और कान का खून CSF के साथ मिला होगा ज़्यादा, तो अमाउंट ज़्यादा होगा जिसको आप बोलते हो कि ओटोरिया हो रहा है विथ CSF। तो CSF के साथ इस तरीके से क्रेनियल फोसा रप्चर होने के साथ ही साथ ब्लड आता है। उसके बाद आता है ब्रेन इंजरी। तो ब्रेन इंजरी में इट में भी प्राइमरी ब्रेन इंजरी और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी इट इज कस्ड एट ए टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जिस समय इम्पैक्ट हुआ उस समय जो क्रिएशन हुआ उसको हम प्राइमरी ब्रेन इंजरी बोलते हैं। दैट में भी इरिवर्सिबल, जो इरिवर्सिबल हो सकती है। एंड सेकेंड वर्ड द सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, ये परिणाम है सब्सिक्वेंट और प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी ब्रेन इंजरी। तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी जो है वो प्राइमरी ब्रेन इंजरी का दुष्परिणाम हो सकती है कि जो प्राइमरी ब्रेन इंजरी की वजह से आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं उसकी वजह से जो चीज़ डेवलप होती है हम उसको सेकेंडरी ब्रेन इंजरी कहते हैं। इस तरीके से द ब्रेन इंजरी में भी आइदर प्राइमरी ब्रेन इंजरी और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया कि प्राइमरी ब्रेन इंजरी या सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन कंकशन, cortical laceration or contusion, diffuse axonal injuries and bone fragmentation. Secondary brain injury, intracranial hematoma, cerebral edema, ischemia, infection and metabolic or endocrinal disturbances. तो इस तरीके से प्राइमरी ब्रेन इंजरी एंड सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, ये दो तरीके की ब्रेन इंजरी ब्रेन में डेवलप होती हैं कि या तो उसी समय जब इंजरी हुई है तो ब्रेन में जो डेवलपमेंट हुए हैं और उसके बाद के जो डेवलपमेंट हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज। अब आता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज। ये मैकेनिकल शेयरिंग हो जाती है, ग्रे और वाइट जो है इंटरफेस हो जाता है ग्रे और वाइट मैटर का, जिसकी वजह से सीवियर एक्सिलरेशन या डिसएक्सिलरेशन फोर्स की वजह से इस तरीके की इंजरी जो है डेवलप हो जाती है। देयर इज स्लाइड्स मूवमेंट ऑफ द ग्रे एंड वाइट मैटर एंड देयर इज नो ऑब्वियस स्ट्रक्चरल डैमेज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज जो है नहीं होता है। सीवियरिटी में रेंज फ्रॉम माइल्ड डैमेज टू कंफ्यूजन टू द कॉमा। अब सीवियरिटी डिपेंड करता है कि किस तरीके का इसमें चेंजेस आया है वाइट और ग्रे मैटर के इंटरफेस में। तो थोड़े बेहोशी से लेकर के माइल्ड डैमेज से लेकर के और कॉमा स्टेज तक भी पेशेंट जा सकता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का यहाँ पर ग्रॉस डैमेज है। मेजर कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट आफ्टर द हेड इंजरी, और जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसके लिए, वेजिटेटिव स्टेट या अनकॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जो कॉज के रूप में जो है हो सकता है कि हाँ ब्रेन टिश्यू को चोट लगी है, उसकी वजह से इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है जिसको आप बोलते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। तो ये इंजरी में बहुत ज़्यादा ग्रॉस डैमेज नहीं हुआ है लेकिन ब्रेन टिश्यू डैमेज जरूर हुआ है। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सेरिब्रल कंकशन। सेरिब्रल कंकशन को मोटे तौर पे ऐसा समझिए कि सेरिब्रल कंकशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हेड इंजरी में सिर में चोट लगने के बाद ब्रेन अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन थोड़ी देर के लिए रोक देता है और जो स्टेट पैदा होती है हम उसको सेरिब्रल कंकशन कहते हैं। और इस स्टेट में पेशेंट थोड़ी देर में अपने वापस नॉर्मल स्टेट को रिगेन कर सकता है या आगे चल करके दूसरी स्टेज में जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा है इट मैनिफेस्ट एज ए ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्रांसियस लॉस ऑफ मेमोरी, autonomic dysfunction like bradycardia, hypotension and sweating. So these are the important feature, means transient loss of unconsciousness,
ट्रांसिएंट लॉस ऑफ मेमोरी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड स्वेटिंग। तो ये सुपरफिशियल बहुत स्टेट होती है कॉन्शियसनेस की, जहाँ की पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस को वापस जल्दी ही गेन कर लेता है। एक फिजियोलॉजिकल स्टेट और स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कंकशन। दूसरा होता है सेरिब्रल कंट्यूजन। It is more severe degree of brain injury manifest by the hemorrhage in the brain parenchyma without surface laceration। यहाँ पर एक बात ध्यान पर रखनी है कि सेरिब्रल कंट्यूजन में सरफेस लेसिरेशन नहीं होता है, यहाँ हेमरेज की बात हो रही है कि यदि ब्रेन में कहीं आसपास जो है ब्रेन इज मोर सीवियर डिग्री ऑफ ब्रेन इंजरी मैनिफेस्ट बाय द हेमरेज। यहाँ पर हेमरेज इंपॉर्टेंट चीज है कि हेमरेज होना एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जहाँ की न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन साइन जो है पेशेंट में जरूर मिलेंगे, विच परसिस्ट मोर देन 24 आवर। जो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन साइन है नर्व के डैमेज का सॉरी ब्रेन के नर्व के डैमेज होने का साइन है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन साइन पेशेंट में आते हैं। तो यदि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन साइंस आ रहे हैं जो कि परसिस्ट करते हैं 24 घंटे से ज़्यादा, तो इसी द स्टेज ऑफ द कंफ्यूजन एसोसिएटेड सेरिब्रल एडिमा एंड डिफेक्ट इन द ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पर सेरिब्रल एडिमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि सेरिब्रल कंफ्यूजन में देखा जाएगा। सो दिस इज सेरिब्रल कंफ्यूजन। तो दूसरी स्टेज है सेरिब्रल कंफ्यूजन की। तीसरी स्टेज है सेरिब्रल लैसिरेशन की। ये डेंजरस स्टेज है। सीवियर डिग्री ऑफ ब्रेन इंजुरी एसोसिएटेड विद दिस मीन्स हियर द सरफेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट। यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो सरफेस इन्वॉल्वमेंट है, जो फंक्शनिंग टिश्यू ऑफ ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है। तो यहाँ सरफेस इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज ऑफ involvement of this brain tissue and especially surface parenchyma. So due to the damage here, the tearing of the brain surface may be due to the skull fracture or due to the sharing force। यहाँ पर ब्रेन टिश्यू ही टीयर हो जा रहा है सरफेस एरिया में, और किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्कल फ्रैक्चर। इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि स्कल फ्रैक्चर भी हो गया है और ब्रेन का जो सरफेस टिश्यू है वो भी टीयर है। और यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम साइन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पेशेंट जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन साइन में जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रल कंप्रेशन। सेरिब्रल कंप्रेशन मतलब दबाव आना। दबाव क्यों आएगा? खून की वजह से आएगा। आइदर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, ड्यूरामीटर के ऊपर हेमरेज हो जाए, या सब ड्यूरल हेमरेज हो जाए, या सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो जाए, आइदर ड्यू टू द common artery which is ruptured due to the injury, that is middle meningeal artery। middle meningeal artery rupture होना बहुत कॉमन होता है। जब भी सर में चोट लगती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है। और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की खास बात होती है कि इसमें ल्यूसिड इंटरवल मिलता है, जो आप फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन क्रेनियल बोन एंड ड्यूरामीटर एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरो parietal region। Commonest vessel in middle meningeal artery। Lucid interval present। Lucid interval means the patient after the head injury, patient become unconscious and again then gaining consciousness, and after some time patient become unconscious again। सो ये जो दो पीरियड है कि अनकॉन्शियस हुआ फिर कॉन्शियस हुआ फिर अनकॉन्शियस हुआ, तो दो अनकॉन्शियसनेस के बीच में जो कॉन्शियसनेस का पीरियड है हम उसको लूसिड इंटरवल कहते हैं। और लूसिड इंटरवल हमेशा एक्स्ट्राड्यूरल में हेमेटोमा में मिलता है, ये आप समझ लीजिए। यदि ऐसा किसी पेशेंट में फीचर मिल रहा हो, लूसिड इंटरवल मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज हुआ है, जहाँ की कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, हेमीपेरेसिस मतलब पैरालिटिक सिम्टम ये जरूर मिलेंगे। हटचिंसन प्यूपिल मिलेगा, प्यूपिल दोनों डायलेट हो जाएंगी, नॉन रिएक्टिव लाइट हो जाएगी। तो ये सिम्टम आपको साइन जरूर मिलेगा। फीचर ऑफ रेज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा। तो ये सिम्टम साइन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज के बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज lucid interval is common feature। in this case patient become unconscious after the head injury and then become conscious after some time and again become unconscious, that is called lucid interval। and this period between two unconsciousness called lucid interval। जहाँ की आप फिर सीटी स्कैन तुरंत कराते हैं, ये सर्जिकल इमरजेंसी है, पेशेंट को तुरंत क्रेनियोटॉमी करना पड़ता है, जिससे कि हम वहाँ पर डिकम्प्रेशन ब्रेन को करें, अदरवाइज नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन द सबड्यूरल हेमरेज मींस कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ब्रेन एंड ड्यूरामीटर। यहाँ पर ब्रेन और ड्यूरामीटर के बीच ब्लड कलेक्ट हो रहा है। द कॉमन इंट्राक्रेनियल मास लीजन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा। acute form within 3 days, subacute form 4 to 21 days, and chronic form
मोर देन 21st डे। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है कि इतने इतने दिन में ये डेवलपमेंट होगा, यहाँ ड्यूरामीटर में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है, जो लीकिंग हो रही है इंजरी की वजह से, इंजर्ड हुई है वेसल, वो ब्रेन और ड्यूरामीटर के बीच में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, और इसमें आगे चलकर कि न्यूरोलॉजिकल जो है डेफिसिएशन साइन पेशेंट में आएगा आफ्टर द इंजरी, जो डायग्नोस्टिक फीचर के रूप में दिखाई पड़ेगा। सबड्यूरल हेमाटोमा जो आगे चल के होगा, दो हेमाटोमा में भी extensive and diffuse, no lucid interval. Here is important, in case of subdural hematoma there is no lucid interval, बट ल्यूसिड इंटरवल प्रेजेंट एट द एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज। वो जो एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज हुआ था वहां ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ अनकॉन्शियस अगर इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमा इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर वहां पर अनकॉन्शियसनेस, देन कॉन्शियसनेस, देन अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री मिली, लेकिन यहाँ पर पेशेंट इज अनकॉन्शियस सिंस द टाइम ऑफ इंजुरी इन केस ऑफ द सबड्यूरल हेमाटोमा, मींस द पेशेंट लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस immediately after trauma in progressive। फीचर ऑफ रेज्ड आईसीपी, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिएशन, सीटी स्कैन यहाँ पर तुरंत कराएंगे, और यहाँ भी सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होगा, तुरंत डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा, आइदर बर होल या जो भी आगे क्रेनियोटॉमी जो भी करना पड़ेगा, इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इंडिकेटेड है। सेरिब्रल हार्निएशन, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ इंजरी की वजह से यहाँ पर सेरिब्रल हार्निएशन भी हो सकता है, कंटेंट जो ब्रेन के हैं वो हार्निएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हायर ग्रेड ऑफ इंजरी। ब्रेन स्वेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस, कि यदि सिर में चोट लगी तो ब्रेन में इडिमा हो जाएगा, हाइपरीमिया हो जाएगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है जो आपको आगे चल करके दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्लिनिकल, आप जितना आपने ऊपर से नीचे तक देखा, इनमें ये निकल के आया कि इतने प्रकार की स्टेजेस होती हैं हेड इंजरी में, जिसमें कि कहीं स्कल्प का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं स्कल का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए सेरिब्रल कंकशन आपने फर्स्ट देखा था, सेरिब्रल इरिटेशन या तो इडिमा की वजह से हुआ है, जहाँ की पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, कर्ल्ड अप पोजीशन में है, फोटोफोबिया हो रहा है, उसको आंख नहीं खोलता है, किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, किसी से उसको 3 से 4 दिन बाद हेडेक रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, पेशेंट हमेशा इरिटेट होता है। सो दीज आर दी साइन ऑफ सेरिब्रल इरिटेशन, जो कुछ दिन के बाद हेड इंजरी डेवलप होता है, एंड आइदर समटाइम ड्यू टू द हेमरेज दैट पेशेंट में बी इरिटेटेड। एंड सेरिब्रल कंफ्यूजन अभी आपने इसके पहले डिस्कस किया। सो इन केस ऑफ हेड इंजरी द मेन क्लिनिकल कंडीशन डेवलप cerebral compression and cerebral laceration. Compression means compression due to the hematoma, either laceration means the surface involvement of the brain or tearing of the brain tissue, that is called cerebral laceration due to the high grade of injury. And the type of patient, when you examine the patient in clinic, the first is conscious patient or comfortable group of patient, जो कि आपके पास आया है कि हमको सिर में चोट लगी है, थोड़ी सी बेहोशी हुई थी या नहीं हुई थी, और हमको एक उल्टी हुई, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नाउसिया एंड वॉमिटिंग, एंड देन पेशेंट इज ओके, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन के साइन नहीं है, नाम ठीक से बता रहा है, जीभ दिखाइए, जीभ दिखा रहा है, आंख दिखाई, आंख दिखा रहा है, कान में सब कुछ ठीक है, हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, देयर इज मेमोरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मीन्स देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएशन साइन, यू शुड डिस्चार्ज द पेशेंट आफ्टर द 48 आवर। ऐसे केस को आप 48 घंटे के बाद छोड़ देंगे, सीटी कराना हो करा लीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, मीन्स ये कंफर्टेबल ग्रुप है, कॉन्शियस ग्रुप पेशेंट है। सेकंड इरिटेबल ग्रुप आता है, जहाँ की हमने आपको अभी बताया था कि ब्रेन टिश्यू में इडिमा की वजह से इस प्रकार के पेशेंट होते हैं, जो कि चिड़चिड़ापन है, जिनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, फोटोफोबिया है, मेंटल वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, कर्ल्ड अप पोजीशन में सोता है तो पैर से कोड़ के सो रहा है, घुटने में सिर को रख के सो रहा है, लाइट नहीं चाहिए हमको, खाना नहीं खाना है ठीक से, इंटरेस्ट नहीं लेना है किसी काम में, तो ये हमारा इरिटेबल ग्रुप है। और कभी कभी इरिटेबल ग्रुप में इंटरनल हैमरेज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो दिस इज द सेकेंड इरिटेबल ग्रुप। एंड नेक्स्ट कैमेटोज ग्रुप इज अनकॉन्शियस पेशेंट आइदर इन विथ ल्यूसिड इंटरवल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज होगा तो पेशेंट इज अनकॉन्शियस having history of lucid interval, and here is unconscious since the time of injury, maybe there may be subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage और laceration of the brain tissue। तो ये कैमेटोज पेशेंट में ब्रेन टिश्यू का तुरंत यदि कंप्रेशन हो गया है तो कोमा में चला जाएगा, और या ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गया है तो कोमा में चला जाएगा, और यदि लूसिड इंटरवल मिल रहा है इसका मतलब पेशेंट में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज हुआ है, जहाँ की गुंजाइश अभी है, और ट्रीटमेंट दोनों में सर्जिकल होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कैमेटोज ग्रुप होगा और अनकॉन्शियस ग्रुप भी हो सकता है, जिसको आप कैमेटोज और अनकॉन्शियस ग्रुप कहते हैं।
तो आइदर विथ लूसिड इंटरवल और विदाउट लूसिड इंटरवल। व्हेन यू अप्रोचिंग द हेड ट्रॉमा, अप्रोच करते हैं तो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अनकॉन्शियसनेस की हिस्ट्री लीजिए, कब से अनकॉन्शियस है, कितनी देर से है। उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस विच इज यूजली द कंडीशन, हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द अटेंडेंट। ये अटेंडेंट हिस्ट्री आपको पूरा देगा यदि आपके पास अनकॉन्शियस ग्रुप का पेशेंट आया है। while one care provider is taking history, resuscitation should be carried out immediately by by other care provider। मतलब कि यहाँ पर साथ में साइमल्टेनियसली आप जो है केयर भी पेशेंट की करिए और एग्जामिनेशन भी करिए, हिस्ट्री भी ले, क्योंकि हम मैनेजमेंट में आपको बताएंगे कि पहले मैनेजमेंट किया जाता है फिर एग्जामिनेशन किया जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पहले पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट बाद में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हेड इंजरी का केस आता है तो हम मैनेजमेंट पहले करते हैं, एग्जामिनेशन बाद में करते हैं। यही कह रहा है कि यू मैनेज द केस, साथ में आप मैनेज करते रहिए, साथ में एग्जामिनेशन। आस्क अबाउट